Hello and welcome everyone. In this video we are going to discuss a lesson and the name of the lesson is packing. So here is a summary detail of this lesson. Let us read it. Packing is a story about three friends who are getting ready to go for a journey. Thus packing summary will help students understand this story in a simplified form. It means in a very simplified form you are going to understand this lesson. It follows the packing session of three friends, Jerome, Harris and George. Yes, you have to remember these three are the characters which play a very important role in this lesson. Thus it begins with them starting the most important thing of a journey, packing. The story is an extract taken from Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome. Jerome K. Jerome is the writer here, as I told you, and he has written this novel Three Men in a Boat, and this is just an extract. एक हिस्सा है ये जो इस किताब से लिया गया है, इस नॉवल से लिया गया है, थ्री मैन इन अ बोट. यहाँ पर नरेटर ने अपने आप को जेरोम बताया है एंड राइट्स अबाउट द एक्सपीरियंस he has while his friends decide to start packing. और वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है यहाँ पर, उसको कैसा एक्सपीरियंस रहा अपने दोस्तों के साथ पैकिंग करने का, वो चीज़ वो यहाँ पर बताने जा रहा है. Decide to start packing. Further it takes us on a hilarious ride about three adults who struggle to do a basic thing as packing. Okay, so this lesson is going to tell us about the hilarious ride about the three adults who struggle to do पैकिंग. बड़ा उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था तीनों के लिए कि पैकिंग किस तरीके से करते हैं और क्या क्या उसके एथिक्स होते हैं. वो फेल थे वहाँ पर, नहीं कर पा रहे थे उसको अच्छे से. तो उसी सारी चीज़ के जो एक्सपीरियंस था राइटर वो यहाँ पर शो करना चाहता है. आइए देखते हैं थोड़ा सा स्टोरी के पार्ट को. ये समरी यहाँ पर रहेगी और थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं सो दैट यू कैन सी इट वेरी वेल. सो as Jerome, Harris and George are ready to set out on a journey. Points to remember: Harris, George, Jerome, Harris and George. ये वो तीनों कैरेक्टर हैं जो एक जर्नी के लिए सेट आउट करते हैं, आई मीन बाहर निकलते हैं, जर्नी पे जाते हैं, प्लान करते हैं. दे स्टार्ट पैकिंग फॉर इट, और उसके लिए वो पैकिंग करना शुरू कर देते हैं. बीइंग द नरेटर, Jerome describes how the packing experience went. इस लेसन में बताते हैं वो कि किस तरीके से उनका पैकिंग का एक्सपीरियंस रहा. We can see that Jerome is quite confident. वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे अपनी पैकिंग स्किल्स को लेकर के, with his packing skills as he handles it all alone. क्योंकि वो उसको अपने आप अकेले ही जो है वो सॉल्व कर सकते थे इस प्रॉब्लम को. While in reality he wishes to simply supervise the packing session. यहाँ थोड़ा ध्यान देना इस बात को. रियलिटी ये थी कि वो चाहते थे कि वो सिर्फ सुपरवाइज़ करें, पैकिंग सेशन जो था उसको सिर्फ सुपरवाइज़ करें. वो खुद पैकिंग करना नहीं जानते थे, बट वो शो ये करना चाहते थे कि मुझे सबसे ज़्यादा स्किल है पैकिंग के अंदर. While making his friends to do the work under him. और अपने दोस्तों को चाहते थे कि वो उनके नीचे काम करें. However, they listen to him and let him handle it all by himself while they sit and relax. और कुछ इस तरह वहाँ पर हुआ कि वो तो बैठ जाते हैं उसके दोस्त और राइटर को खुद वहाँ पर पैकिंग करनी पड़ती है. This does not impress Jerome. Jerome का ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. Nonetheless, he gets to it. Finally, after a long packing session, he packs the bag up. और फिर काफ़ी समय के बाद वो अपने बैग को पैक कर देते हैं. While his friends watch him quietly. और वो बड़े शांति से उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से पैक करता है. Do all the work. Soon Harris tells him about the shoes. और पहली बात जो वहाँ पर आ जाती है कि पहली जो प्रॉब्लम थी वो उसको जब सारी पैकिंग हो जाती है तो उसके बाद हैरिस उसको कहता है शूज़ के बारे में, दैट ही डिड नॉट पैक, कि उन्होंने वो पैक जो है नहीं किए हैं. Jerome will have to reopen the bag. अब वहाँ पर उसको दोबारा से रीओपन करना पड़ा, वो बैग दोबारा से खोलना पड़ा. To make space for them, ताकि उनके लिए वो जगह बन जाए. Thus after learning about the shoes, Jerome remembers his toothbrush which he did not pack. अब दूसरी बार जो उसको प्रॉब्लम आई
वो उसको एकदम से याद आया कि शायद उसने अपना टूथब्रश जो है वो पैक नहीं किया है। इन ऑर्डर टू फाइंड इट ही एम्पटीज द होल जस्ट फॉर वन टूथब्रश, और उसको फाइंड करने के लिए एम्पटी का मतलब होता है खाली करना, उसने बाकी सारी चीज़ें फिर से खाली करनी पड़ी ताकि वो टूथब्रश को फाइंड आउट करे। तो पहला जो है वो बूट को लेकर के प्रॉब्लम हुई, दूसरा टूथब्रश को लेकर के, ये याद रखना आप लोग। एलिस ही फाइंड्स इट इनसाइड अ बूट एंड पैक्स द बैग अगेन, और दोबारा से क्या होता है कि उसको जो टूथब्रश मिलता है वो इनसाइड ए बूट, वो जो एक जूते के जो अंदर है, शूज़ के जो अंदर है, वो उसके अंदर उसको जो है मिलता है, उसका जो ब्रूस होता है वो उसको शूज़ के अंदर मिलता है। तो उसको वो दोबारा से फिर बैग को पैक करता है। आफ्टर दैट वी सी दैट वन मोर क्वेरी अराइजेज फॉर द शॉप बाय जॉर्ज। अब थर्ड जो क्वेरी अराइज होती है वो जॉर्ज के द्वारा होती है। जॉर्ज वो कहता है कि क्या तुमने शॉप को पैक किया कि नहीं किया, साबुन डाला तुमने या नहीं डाला। तो कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है एज ए रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है वहाँ पर, दिस इरिटेट्स जीरोम, और जीरोम जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, सो मच दैट ही डज़ नॉट पे हीड टू इट, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि हीड का मतलब होता है ध्यान, और वो इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। एंड पैक्स द बैग एनीवे, और अपने बैग को पैक कर देता है। हाउ एवर to his mistake he has to reopen it again due to his spectacles। हालांकि वो ये बात भूल जाता है कि उसने कुछ चीज़ें उसके अंदर डाल दी हैं, और वो उन चीज़ों में से एक थी स्पेक्टिकल्स, यानी कि नंबर 4 जो फोर्थ टाइम जो उसने बैग को ओपन किया वो अपने स्पेक्टिकल्स की वजह से किया। बीइंग लॉक्ड इनसाइड द बैग, जो कि उसने लॉक कर दिया था बैग के अंदर ही। दिस पैकिंग सेशन फाइनली कंक्लूड्स एट 10 o'clock, और 10 बजे के आसपास ये जो है ओवर हो जाता है। ये सब चीज़ें करते करते वो अपनी पैकिंग ओवर कर लेता है। सो वी सी दैट आफ्टर टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम टू पैक, सच अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय उसको लगा पैक करने में, जीरोम्स अदर 2 फ्रेंड्स पैक द हैम्पर्स देमसेल्फ। अब दोनों की दोनों जो उसके दोस्त हैं वो हैम्पर्स को पैक करते हैं। हैम्पर क्या होता है, एक बास्केट होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप फ्रूट्स वगैरह रखते हो, ये बास्केट होती है और इसमें आप फ्रूट्स वगैरह रखते हो, तो ये हैम्पर कहलाता है। टू शो हिम हाउ इट इज़ एक्चुअली डन, वो हैम्पर्स रखते हैं और दिखाते हैं उसको कि देखो ये किस तरीके से रखा जाता है। हाउ एवर दे आर आल्सो सिमिलरली गॉकी एंड ब्रेक मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग ए कप इनटू पीसेस, और जब वो ये सब कर रहे थे तो उन्होंने एक कप को जो है पीसीज में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। फर्दर आगे क्या होता है, फर्दर मीन्स होता है आगे। आगे दे स्क्वैश टमेटोज एंड ट्रेड ऑन बटर, दे स्क्वैश टमेटोज एंड ट्रेड ऑन बटर वाइल आल्सो स्मैशिंग द पाइज, और वो पाइज़ को भी वहाँ पर स्मैश कर देते हैं। इन सब चीज़ों में टमाटोज़ को भी स्मैश कर देते हैं। देखो उनको सिर्फ फ्रूट्स रखने थे और ये वेजिटेबल्स जो भी खाने पीने की चीज़ें थी वो रखना था, हैम्पर्स रखने थे, उसमें उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आई और टमाटो को उन्होंने क्रश भी कर दिया। इन एडिशन देयर इज़ ए साल्ट फ्लाइंग हियर एंड देयर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दस आफ्टर मच केओस दे ट्राई टू पुट थिंग्स बैक इन ऑर्डर, और ये सब चीज़ें अस्त व्यस्त करने के बाद, केओस का मतलब होता है अस्त व्यस्त कर देना, ये सब चीज़ें अस्त व्यस्त करने के बाद उन्होंने सोचा कि इन सब चीज़ों को दोबारा से ठीक से रखा जाए। हाउ एवर इट्स नॉट सक्सेसफुल एज देयर पैट डॉग, लेकिन ये सब चीज़ें इतनी सक्सेसफुल आसानी से होने वाले नहीं थी क्योंकि वहाँ पर उनका एक पैट डॉग आ जाता है। यू अंडरस्टूड, एक डॉग आता है वहाँ पर, और ये डॉग होता है, इसका नाम होता है मोंटमोरेंसी, ये याद रखना आप, इस डॉग का नाम है मोंटमोरेंसी। वर्जन थिंग्स, और ये चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर देता है और उन सिचुएशंस को और ज़्यादा वर्जन कर देता है। ही सीट्स ऑन थिंग्स मेंट टू बी पैक्ड, वो उन चीज़ों पर बैठ जाता है जिसको पैक करना होता है। एंड क्लिम्स इनटू द जैम एज वेल एज क्रशेस लेमन्स एज इफ़ दे वर रैट्स, और लेमन्स को जैम के ऊपर वो बैठ जाता है, जंप कर जाता है, और लेमन्स के ऊपर वो क्रश कर देता है लेमन्स को रैट समझ करके। बट फाइनली द फाइनल पैकिंग एट्स एट अराउंड 12:50, अराउंड 1 o'clock you can say in the night,
पैकिंग जो सेशन है वो इनका ओवर हो जाता है इतनी स्ट्रगल के बाद। यानी कि 10 o'clock के आसपास राइटर ने फिनिश किया था, उसके बाद लगभग 3 hours और उन्होंने ले लिए ये सब चीज़ें करने के अंदर। आफ्टर अ टायरिंग पैकिंग सेशन, बहुत ही उनका जो सेशन था वो टायरिंग हो चुका था। दे डिसाइड द टाइम टू गेट अप फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब उन्होंने सोचा, बताया, डिसाइड किया कि अब हमने अगले दिन किस समय उठना है। एंड जॉर्ज डॉजेज ऑफ बिफोर एंगेजिंग इन द कॉन्वर्सेशन। वहाँ पर जॉर्ज जो है जा कर के सो जाता है, वो उनकी कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इन द एंड, आखिर में क्या होता है, जेरोम एंड हैरिस मार्क 6:30 एज द वेकअप टाइम एंड गो ऑफ टू स्लीप। उसके बाद वो 6:30 डिसाइड करके कि भाई 6:30 पे हमें कल सुबह उठना है, और ये कह कर के गो ऑफ टू स्लीप, वो सोने के लिए चले जाते हैं। तो ये समरी थी इस पूरे की पूरे लेसन की, पैकिंग की, जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमने पैकिंग करना होता है। और ये कहानी थी 3 फ्रेंड्स की। 3 फ्रेंड्स हैं इसके अंदर जो कि एक जर्नी प्लान करते हैं, जिसमें से एक तो खुद राइटर ही है, दूसरा हैरिस है, और थर्ड जो है वो जॉर्ज है। तो दोनों मिलकर के आखिरकार उस पैकिंग सेशन को एंड करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। आई थिंक आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।